हमारी साक्षी आयाचित मैम। साक्षी मैम को आपने दिन में देख लिया होगा, बहुत एक्टिव पर्सन है, बहुत अच्छी डांसर हैं और बहुत अच्छी सिंगिंग भी करती हैं। साथ में ये बहुत अच्छी रेकी मास्टर हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। तो अगर कभी आपको किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर से आप साक्षी मैम का नंबर अपने साथ में रखिए। और तीसरा मन संचालक मैं स्वयं अविनाश लंगोटे, 91-95 बैच BA BEd। तो आज के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के धमाकेदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप सभी का पुनः पुनः स्वागत। एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए आप लोग। कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं तापस आप तैयार हैं? कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारी कल्चरल सेक्रेटरी श्रीमती चारुशीला जोशी जी हमारे साथ में हैं और ये हमारा मान है, सम्मान है, अभिमान है कि हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत एक देवी स्वरूप हमारी बहन से कर रहे हैं, चारुशीला जोशी दीदी। Hello. Good evening all. And most welcome to this cultural evening. This is going to be an extravaganza for all of us. And it has to be such that everyone will remember this forever. So, let me start with some formalities. Respected Principal of Regional Institute of Education, Bhopal, teaching and non-teaching members of RIE, Executive Committee of Alumni Association of RSA, my colleagues and dear friends. I welcome you all for this wonderful event of cultural program organized by AARICE. It gives me immense pleasure to be a part of this scintillating evening. Being on campus reminds me of the mesmerizing days that we friends spent in Shanti Niketan almost 50 years back. It had been a memorable experience indeed. Just at the tender age of 15 to 16, you leave your parents, your cozy and secured home, and be into a seemingly harsh circumstances of hostel, where there is hardly any familiarity, be it with language, with food, with friends. However, the introduction program held at first year puts you into great comfort, and then things start going smoothly. This training and experience during 4 years, and especially the hostel life, personally helped me a lot in organizing similar programs at my college level, be it as professor in charge of various activities that were held in my college. If I introduce myself, I had been professor in physics in Ramdev Baba College of Engineering and Management, Nagpur. I retired as professor in physics, so I have been into similar kind of experience and have been in charge of various activities there in college, including being warden of the hostel. After the 4 years program of BSc Honours B.Ed, some of us joined services like including banks or schools, some of us, including me, joined post-graduation, and some of us, of course, joined after that some research work leading to PhD degree. After a long gap, our present President Archana Srivastav and a few others formed a WhatsApp group, and all the memories came to life once again after such a long gap. And that's why we are here for this reunion and this extravaganza. It is my privilege to be the cultural secretary, and I thank Alumni Association and each member for extending their support. Coming to today's program, as organizing committee of the cultural evening, we had to take a few harsh steps, like harsh decisions I would say, like
one person, one program. Each program should be of 2 to 3 minutes duration. Even anchor should limit their anchoring to 1 to 2 minutes. Secure some slots for IE staff so that they also should show their talent, and secure slots for spouses of the alumni. Let me assure you that this was essential for better organization of the program, finish it in time, and have an overall better representation from all the sections. Kindly remember, we all RCNs have put in great efforts in organizing this program. We are not professionals, so if something goes off here and there, please excuse us. There are 2 to 3 important announcements. Some of them have already been made. One is about the Singers Trophy. The Best Singer Trophy is going to be given by Savarkar sir. That has been already declared. And half an hour DJ will be played at the end of this program. So everyone, I invite everyone to be a part of it, be it singing, be it dancing, be free with full enthusiasm. Our program, as you are aware, is on live streaming. So through Facebook and Instagram, people being at home also can watch this program live. So with all the enthusiasm and fervor, let's move on to celebrating the cultural evening. I request all of you to be in your seats till the end of the program. Thank you so much. To start our cultural program, I would like to invite the cultural committee to be on stage, who has put a lot of efforts in organizing this program. So I request Savarkar sir, Sakshi, Bharti, Maya Deshmukh. Kalpana has not come. Can you please show the cultural committee photo, please? सर यहाँ से नहीं निकलिए प्लीज़। पीछे नहीं हो सकता जी, थोड़ा सा पीछे हो सकता है सर। पीछे वालों को ज़्यादा दिक्कत होगी, पीछे तो जगह वो आगे दिक्कत है, आगे निकलने का है ना, इसलिए भी ना आगे। हाँ जी, cultural committee had been very active in organizing this program. I got help from all sections, all persons. Sakshi had been there all the while. At any time, maybe at 10 o'clock at night or maybe 6 a.m., she was always available. Let's move now on to the first item of our cultural evening. To start our cultural program, I present a tribute to Sanjeev Pendarkar ji, our popular Basuri Wala, with his Basuri recital with a song. Can you please play that video? Video.
Basuri, you will remember that every morning Pendarkar sir used to put one piece of song every morning and he used to greet everyone with that. His close friend, Dr. Tarak Kate, who is also a noted botanical scientist, stays in Varga. He was his close friend and he had paid tribute to Sanjeev Pendarkar sir through a message. I will read that message for you all. I am reading on behalf of Dr. Tarak Kate sir. I am extremely delighted to recollect my most memorable days that I spent in RCE at Bhopal, which was indeed the golden days of my life. Ours was a very first batch, rather the pioneering batch of the college during 1964 to 69. Most of the students selected for admissions to the college were from various backgrounds and hence felt that this was an opportunity offered to them to shape their future. Our group was well knit and Sanjeev was one of them. He was not only my batchmate but also my roommate. He was simple, gentle, with suave manners. I still remember some of his gestures like sitting on the cot and reading books or playing on the flute. He was extremely polite. I was his roommate. While entering into his room or my room, he used to ask, "May I come in?" And that's how I remember him. That politeness he had. He was extremely methodical in his habits. Even to fill a small fountain pen with ink, he would take utmost care not to let a single drop fall on ground. He had beautiful handwriting. In those days, we started in our first year with a magazine in Marathi called Tushar, and Dr. Tarak Kate said he was the editor of that magazine, and Sanjeev Pendarkar sir was given the responsibility of writing that, which he did in beautiful manner. Those days, boys and girls were residing in the same hostel, boys staying in the lower floor and girls occupying the upper one. By that time, Sanjeev became very famous because of his enchanting melody of that he used to display on his flute. Many a times, he used to be seen in the middle corridor of the hostel surrounded by a band of girls. And we didn't lose a chance of teasing him by calling him Krishna surrounded by gopis. Sanjeev was a diligent student. He did his post-graduation at MBA Bhopal. He then readily got appointed as a teacher in Hadas High School, Nagpur, along with two other students of our batch. He was very good at teaching and therefore was a very respectable teacher. For all batchmates, he was a very good friend and he was always concerned about the well-being of everyone with whom he came in contact. We used to meet quite frequently and enjoy our togetherness. Although belonged to the same batch, he was senior to me and other two batchmates by 1 year. Hence, 3 years back, we felicitated him along with Vinayak Do as they turned 75. Indeed, that day proved to be a very memorable event of our friendship. For the last few years, he was suffering from pulmonary fibrosis and had to be kept frequently on oxygen supply. Yet, we 5 friends from the first batch could somehow manage to attend the RC get-together organized in 2018 at Bhopal. It was indeed an immense pleasure in meeting the old friends and other alumni, as well as also enjoying the ambience of our college, which got completely redressed in new greenery, scenic beauty that we are observing today. Few years back, Sanjeev asked me whether it could be appropriate to put his Bansuri recital every morning in RCE WhatsApp group, and I replied, why not? And then started a trail of welcoming every morning with the melodious enchantment emanated from his flute. It
continued for more than 4 years. During this period, it used to become quite difficult for him to record a new song because of the breathlessness that he had. But he continued with this trail by putting the pre-recorded songs. He had almost 200 pre-recorded songs we used to play sometimes. In him, with his demise, Dr. Tarak Kate writes, in him we lost a good human being who was full of sympathy and empathy for others. I pay my due homage to this beloved friend of ours and express my profound gratitude to him who brought many moments of unforgettable happiness in our life. So, friends, with this message, we have started our cultural evening. Now I hand over mic to Savarkar ji for further program. Thank you so much. कब के बिछड़े हुए हम आज यहाँ आके मिले, जैसे मन चाही दुआ बरसों आज माँ के मिले। साथियों नमस्कार। फिर एक बार इस हॉल में बरसों बाद आपका स्वागत है, अभिनंदन है। वास्तव में बहुत बरसों बाद हम फिर से एक बार मिले हैं। एक वो दौर था जब हम नौजवान थे, इस कॉलेज में पढ़ते थे। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे साथी बोलते यहाँ से हम चलते थे कितनी दूरी थी और आज हमें थोड़ा सा थकावट महसूस होती है। तो साथियों, वो नौजवानी के दिन आज याद आते हैं। आज हम सीनियर सिटीजन्स हैं, लेकिन मैं उम्र को सिर्फ एक नंबर मानता हूं। उम्र तो सिर्फ एक नंबर है और हम आज भी किसी से कम नहीं है। साथियों, हम सब मिले हैं तो फिर से नूर छा गया है। बड़ी मुद्दत के बाद फिर से नूर छाया है। बड़ी मुद्दत के बाद फिर से नूर छाया है। आज कोई अपना अपनों के बीच आया है। आज कोई अपना अपनों के बीच आया है। साथियों, यहाँ अनमोल रत्न बैठे हैं रीजनल कॉलेज के, जिन्होंने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज फिर नौजवान आप बन जाइए एक बार, और एक बार अपने खुद के लिए जोरदार तालियां। नहीं, अभी जोरदार तालियां नहीं, एक बार जोरदार तालियां, दिल खोल के तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और अब ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ अपने कल्चरल प्रोग्राम की ओर। तो हम पेश कर रहे हैं रंगारंग आज का कार्यक्रम, जो बड़ी मेहनत से हमारे साथियों ने, जो हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में बैठे हैं, मिलकर उन्होंने तैयार किया है। और इसे मैंने नाम दिया है ओल्ड इज गोल्ड। जितने भी लोग हैं सब ओल्ड हैं, लेकिन दे आर रियली गोल्ड। तो बहुत से अनमोल रत्न हमारी झोली में है, हम आपके सामने पेश करेंगे। इस शहर में साथियों हम मुसाफिर की तरह हैं और आए हैं मुसाफिर की तरह। तो आगाज करते हैं इस प्यारी सी महीन सी गजल के साथ आज के कार्यक्रम का। और वो गजल है, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। पेश है आपके सामने जानी मानी हस्ती, एक जाने माने कलाकार 6973 बैच के बड़ौदा से हमारे बीच पधारे हैं भाई मदन खरे। अपने जमाने में साहब इनका बड़ा जलवा था। तो देखिए भाई मदन खरे पेश कर रहे हैं एक प्यारी सी गजल।
ये गज़ल मुझे पसंद आई तो मैं प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद। हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। सुबह तक तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ। सोचने के लिए इस रात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। अपनी आँखों में छुपा रखे हैं जुगनू मैंने, अपनी आँखों में छुपा रखे हैं जुगनू मैंने, अपनी पलकों पे सजा रखे हैं आंसू मैंने। मेरी आँखों को भी बरसात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। थैंक यू। सभी ऑडियंस ध्यान रखेंगे। हम कलाकारों को और कुछ नहीं चाहिए आपके प्यार और आपके इकरार के बिना, और प्यार मिलता है हम लोग कलाकारों को तालियों से। प्लीज जो भी यहाँ पे अपनी कला की प्रस्तुति दे, ताली जरूर बजाइए। अभी पहली पायदान पर भाई मदन शर्मा को आपने, मदन खरेजी को आपने सुना। मैंने कहा था ना ओल्ड इज गोल्ड, वास्तव में ये गोल्ड है, रियल गोल्ड है। और अब आगे कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए मैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ अपनी साथी कलाकार साक्षी एशित जी को। Thank you very much, sir. Good evening, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वैसे कॉलेज में से मेरी तारीफ सुन रहे हैं, इसलिए परिचय देना उचित नहीं है। आज की इस इंद्रधनुषी रंग बिरंगी शाम में आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। साथियों, आज का आयोजन
शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि भावनाओं की महफिल है। तो चलिए इस खूबसूरत सी शाम को आगे बढ़ाते हैं और अगली प्रस्तुति के लिए मैं जिनको आमंत्रित करने जा रही हूँ, उनका नाम और एक्ट इस गाने के बोलों से आप पहचानिएगा, इसी में छुपा हुआ है। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। जी हाँ, सही पहचाने हैं, नाम श्याम सुंदर जी 6973 बैच से। आप आरबीआई के उच्च पद से रिटायर्ड हैं और वर्तमान में पांडुना में खेती करते हैं। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। तो कितनी राधाएं और कितनी मीराएं इस धुन की दीवानी रही होंगी, आप सब समझ सकते हैं। आप गुस्सा की माफ करेगा ना। बिन बूंदों के बरसात का एहसास कैसे होगा, जुनून हो दिल में वो हताश कैसे होगा। कार्यक्रम का मिजाज कैसा है जनाब, बिन तालियों की ये एहसास कैसे होगा। Now presenting very romantic, beautiful and dancing couple जो हर महफिल की शान है, श्री प्रमोद शर्मा जी एवं श्रीमती सुमन शर्मा जी। प्रमोद जी फाइनेंशियल एडवाइजर और डायरेक्टर चार्ट एंड अकाउंट एमपी गवर्नमेंट से रिटायर्ड है। आपको सलाह दी जाती है कि जरा धीरे चलिए, क्योंकि ऊंची नीची है टगरिया और पतली है इनकी कमरिया।
शामिल उन पलों में हम होना हो। स्वर्गीय अवधेश शर्मा जी को श्रद्धांजलि स्वरूप प्रस्तुत है उन्हीं की स्वरचित कविता, जिसे सुनाने जा रही है 74-78 बैच से श्रीमती भारती वाजपेयी जी। भाई रीजनल कॉलेज में हूँ शूट पे। कौन सी? जी हाँ, आज मैं हमारे कॉलेज के 1968-72 बीकॉम के बहुमुखी प्रतिभा के धनी पूर्व छात्र स्वर्गीय श्री अवधेश शर्मा जी को श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करने आई हूँ। बैंकर होने के साथ साथ शर्मा जी एक एंकर, कवि, साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता एवं राजनीतिक गोष्ठियों में रुचि रखने वाले हंसमुख व्यक्तित्व के स्वामी थे। 28 नवंबर 2020 को उनका निधन हुआ। इसके पहले बीमारी में ही उन्होंने अपने छात्र जीवन के संस्मरण लिखे थे, जिन्हें दुर्भाग्यवश हम संचित नहीं कर पाए। अपने दोस्तों और मिलने वालों की यादों में वे हमेशा ठहाकों और मुस्कुराहटों के साथ जिंदा हैं। आज उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मैं उनकी एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें उन्होंने जेठ की तपती दोपहरी का अनुभव भी मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया है। फूल उगलते हैं पलाश और आग लगी चौबारों में, जेठ धधकता घर के बाहर, प्यास भटकती गलियारों में। पायल बनघट से दूर हुई, पायल बनघट से दूर हुई, नदी सिकुड़ कर भूल हुई। किसका आंचल, किसकी जुल्फें, किसके नयन गुलाबी हैं, कौन लगे हिरनी जैसी, इसके नयन शराबी हैं। दर्पण से पूछा गौरी ने, दर्पण से पूछा गौरी ने, चेहरे का क्या हाल हुआ। हंसकर दर्पण बोल उठा, सूरज जैसा ही लाल हुआ। कैसी गर्मी है निपट गंवारी, कैसी गर्मी है निपट गंवारी, अंगिया तक गीली कर डाली, अमराई की हर कैरी को गुस्से में पीली कर डाली। सूखे फूल दहकती खुशबू, सूखे फूल दहकती खुशबू, मौसम थानेदार हुआ है। धूप लपकती शमशीरों सी, हवा का दामन चार हुआ है। प्यास हुई बंजारों सी, प्यास हुई बंजारों सी, ध्यान से सुनिए, प्यास हुई बंजारों सी और पानी भी गद्दार हो गया। देवों जैसा सूरज भी अब लगता है अंगार हो गया। प्यार मोहब्बत के अफसाने भी, प्यार मोहब्बत के अफसाने भी इस गर्म ताप में झुलस गए। उम्मीदें जलकर खाक हुई, लैला को मजनू तरस गए। थैंक यू सो मच दीदी। बहुत ही नाजुक पल। यादों का सिलसिला कितना अजीब होता है, जो दूर होता है यादों की वजह से कितना करीब होता है। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम यूं ही कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे, गर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। अपनी खूबसूरत आवाज़ में बहुत ही प्यारा गाना सुनाने जा रही हैं 73-77 बैच से श्रीमती प्रतिभा खरे जी। आप केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी थी और गीत के बोल हैं ममता फिल्म से रहे ना रहे हम। और इसके बाद में शमीम बहादुर दीदी आप तैयार रहिएगा प्लीज़।
मच, थैंक यू। समक्ष एक खूबसूरत सी गजल लेकर आ रही हैं 73-77 बैच से मिसेस शमीम बहादुर जी। आप केंद्रीय विद्यालय से रिटायर्ड हुई हैं और गीत के बोल हैं, पहले तो अपने दिल की रजा जान जाइए। इस रंग भरी शाम पर हार्दिक अभिनंदन। एक छोटी सी हल्की सी गज़ल है। पहले दूसरी गज़ल कहने वाले थे लेकिन उसके बोल कुछ याद नहीं आ पा रहे थे, तो ये आपके सामने 3 मिसरों की गज़ल पेश है। पहले तो अपने दिल की रज़ा जान जाइए, पहले तो अपने दिल की रज़ा जान जाइए, फिर जो निगाह यार कहे मान जाइए। पहले तो अपने दिल की रज़ा जान जाइए, पहले निगाह राह गुज़र जान जाइए, पहले निगाह राह गुज़र जान जाइए, फिर गर्द राह जो भी कहे मान जाइए। पहले तो अपने दिल की रज़ा जान जाइए। कुछ कह रही है आपके सीने की धड़कने, कुछ कह रही है आपके सीने की धड़कने, कुछ कह रही है आपके सीने की धड़कने, मेरा नहीं तो दिल का कहा मान जाइए, मेरा नहीं तो दिल का कहा मान जाइए। पहले तो अपने दिल की रज़ा जान जाइए। एक धूप सी जमी है निगाहों के आसपास, एक धूप सी जमी है निगाहों के आसपास, एक धूप सी जमी है निगाहों के आसपास, ये आप हैं तो आप पे कुर्बान जाइए, ये आप हैं तो आप पे कुर्बान जाइए। पहले तो अपने दिल की रज़ा जान जाइए। शायद हुजूर को कोई निस्बत हमें भी हो, शायद हुजूर से कोई निस्बत हमें भी हो, शायद हुजूर से कोई निस्बत हमें भी हो, आँखों में देख कर हमें पहचान जाइए, आँखों में देख कर हमें पहचान जाइए। पहले तो अपने दिल की रज़ा जान जाइए, पहले तो अपने दिल की रज़ा जान जाइए। बरबस स्मृति में आ जाती हैं लिखी कभी की कुछ रचनाएं, कुछ पंक्ति भी पढ़ लेते हैं तो सारे कष्ट थकन मिट जाते, कुछ बोलकर कुछ तुमसे सुनकर चलो बीती फिर हम आज बिताएं। बहुत ही खूबसूरत स्वरचना संस्मरण के रूप में लेकर आ रहे हैं 75-79 बैच से श्री भास्कर मिश्रा जी। आप जेके बिरला LNG भीलवाड़ा और HEG में जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट एंड टेक्निकल एडवाइज़र के रूप में पदस्थ थे और वर्तमान में भोपाल में रहते हैं। भास्कर मिश्रा जी। और इसके बाद में अविनाश देवधर जी, आप प्लीज तैयार रहिएगा। बिजनेस कॉलेज में एडमिशन हो गया था। मुझे बताया गया कि भोपाल जाना, रेलवे स्टेशन पर उतरना, स्टेशन पर उतर के सिटी बस मिलेगी, 25 पैसे लगेंगे, उससे बोलना पॉलिटेक्निक चौराहा चलो, आप वहाँ उतर जाना, पास में रीजनल कॉलेज है।
मैं सीधी से बस से कटनी आया, कटनी से बस पकड़ के भोपाल आया। भोपाल मेरी ट्रेन सुबह 5 बजे पहुंच गई थी। फिर मैं सिटी बस में पहली बार सिटी बस देखा, मुझे अंदाज नहीं था, कैसे भी धक्का उक्का खा के मैं पहुंच गया पॉलिटेक्निक कॉलेज चौराहे पे। मेरे पास एक बक्सा था जो मेरी भाभी जी शादी के बाद साथ में लेके आई थी, बड़ा सा बक्सा लोहे का। चूँकि काफ़ी सामान लेके आना था तो मेरी मदर ने उसमें जो जो सामान आता है सब कुछ रख दिया। और एक बेडिंग थी, हमारे पिताजी ने बेडिंग में सब कुछ, गद्दे, रजाई और किताबें हायर सेकेंडरी की काफ़ी रख दी। 2 आइटम थे मेरे पास। मैं किसी तरीके से दोनों को लेकर जब चला पॉलिटेक्निक से आकाशवाणी पहुंचा तो मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं समझा कि पहुंच गए होंगे अब तो मैंने कहा रीजनल कॉलेज है ये? बोले नहीं, ये तो आकाशवाणी है, रीजनल कॉलेज आगे है। फिर मैं चला, थोड़ा और पूछा, यही रीजनल कॉलेज है? नहीं नहीं नहीं, ये तो आदिवासी छात्रावास है, रीजनल कॉलेज तो उधर है। मैं घबरा गया, मेरी हालत ख़राब हो गई कि कैसे जाऊंगा उतना दूर। फिर मैंने सोचा अपना बक्सा और बेडिंग लेकर साथ नहीं चल सकता मैं, तो मैंने दोनों चीज़ वहाँ रखा, बक्सा उठाया, बक्सा लेके गया, कुछ दूरी पे रखा, फिर वापस आया, बेडिंग उठाया, फिर वहाँ जाके रखा। इस तरीके से मैं आगे पीछे होता रहा और मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मेरा पैर छिल गया था, ब्लड निकल रहा था बक्से से लग लग के। इतने में आगे सभी जानते हैं तो वो अपना वो क्या बोलते हैं, उसकी दुकान थी, समोसा बेचता था। हाँ, तो गुमटी पे मेरे बड़े भैया जो बीएससी सेकेंड ईयर पास किए थे वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसमें मोबाइल तो था नहीं कि अभी तक आया नहीं करके सोचे होंगे ऑटो से आएगा। फिर वो वहाँ से चल दिए थे पैदल, मैं यहाँ से जा रहा था। दूर से देखे हम लोग तो उन्होंने देखी मेरी हालत कि ब्लड निकल रहा है और तो भरत मिलाप होता है, पहले गले मिले, फिर उन्होंने बक्सा उठाया सिर पे, मैंने बेडिंग उठाया सिर पे, हम दोनों भाई रीजनल कॉलेज के लिए जाने लगे। और वहाँ पहुँचे तो छात्रावास के पास, विद्या निकेतन के पास रामनाथ हमारा केयर टेकर जो था वो मिल गया साइकिल से। फिर हमें किसी तरीके से कीर्ति निकेतन लेके आया, मेरे भाई साहब वहीं रहते थे। इस तरीके से हमारी सीधी से लेकर रीजनल कॉलेज की यात्रा पूरी हुई। ये 1975 की बात है। धन्यवाद। जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त इनका अंदाज है, तो ज़ोरदार तालियों के साथ अगली प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री अविनाश देवधर जी। आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ऑफिसर के पद से रिटायर्ड हैं और वर्तमान में भोपाल में निवासरत हैं। इसके बाद अनीता चावला दीदी। साथियों नमस्कार, मैं अविनाश देवधर 74-78 बैच से। सबसे पहले मैं अपने उन साथियों को श्रद्धांजलि देता हूं जो हमारे साथ थे पर आज इस शाम को हमारे साथ नहीं हैं, और साथ ही साथ मैं उन साथियों को बधाई देता हूं जो आज हमारे साथ हैं और हम लोग 50 साल पूरे कर चुके हैं, गोल्डन जुबली मना रहे हैं। वास्तव में हम इस रीजनल कॉलेज में कहां से आए थे, कोई उत्तर से कोई दक्षिण से, सब एक जगह मिले और फिर धीरे धीरे खो गए। मराठी में कहते हैं अशी पाखरे येथे आणि स्मृती ठेवूनी जाते, 2 दिशांची रंगत संगत 2 दिशांची नाती। ऐसे पंछी सब आते हैं जो 1-2 दिन मिलते हैं और उनका रिश्ता कायम हो जाता है, जन्म जन्मांतर के लिए यादें रह जाती हैं। तो वास्तव में ज़िंदगी एक पहेली है, हम सब मिलते हैं फिर खो जाते हैं। इसी से संबंधित आज मैं एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, ज़िंदगी एक पहेली है।
जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। कभी देखो मन में जागे पीछे पीछे सपनों के भागे, कभी देखो मन में जागे पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों के आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेरी सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेरे सुख दुख संग संग झेले, वही चुन कर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। थैंक यू। गूंजती रहे तालियों की आवाज, मिलता रहे मंच को आप सबका प्यार। तो हमारी गूंजती रहे तालियों की आवाज, मिलता रहे मंच को आप सबका प्यार। तो हमारी अगली कलाकार भी धमाल मचाने को है तैयार। तो तालियां बजती रहे द मोस्ट गॉर्जियस स्टनिंग सुपर डांसर मिसेस अनीता चावला जी फ्रॉम 74-78 बैच से। आप डायरेक्टर ऑफ अर्गो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड हैं, सोशल वर्कर हैं और शिक्षा के क्षेत्र में सेवा भारती एनजीओ के साथ अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। गाने के बोल हैं वन एंड ओनली ऑल टाइम फेवरेट कजरा मोहब्बत वाला। भैया को बिठा देना अंकुर भैया, भैया को बिठा दो। गजरे ने
बहुत ही ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच दीदी। और दीदी की एनर्जी देख के तो वाकई में मैं निशब्द हो गई हूँ। फूलों ने नगमे बिखेरे, सितारों ने महफिल सजाई, आपकी तालियों की झनकार ने आज की शाम खूबसूरत बनाई। कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक खूबसूरत सा गीत लेकर आ रही हैं वेरी चार्मिंग लविंग मिसेस भारती वाजपेयी जी। आप बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर्ड हैं। इनकी खासियत यह है कि आप किसी भी प्रकार की जानकारी किसी भी समय आप इनसे मांग सकते हैं और इनके पास वो उपलब्ध रहती है। हम इनको एनसाइक्लोपीडिया भी कह सकते हैं। गीत के बोल हैं जाने क्या तूने कही। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और अगली अनाउंसमेंट के लिए मैं सावरकर जी को माइक सौंपती हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपके प्यार और सम्मान के लिए धन्यवाद। आता है ना तो लास्ट वाला प्राइज मुझे दे दीजिए। The best gift for Papa Mummy, Sarigama Karwa. जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बातें कुछ बनी गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बातें कुछ बनी गई। जाने क्या तूने कही। सनसनाहट सी हुई, थरथराहट सी हुई, सनसनाहट सी हुई, थरथराहट सी हुई। जाग उठे ख्वाब कई, बात कुछ बनी गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बातें कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही। जुल्फ नैने झुक झुके उठे, पाँव रुक रुके उठे। नैने झुक झुके उठे, पाँव रुक रुके उठे। आ गई चाल नहीं, बात कुछ बनी गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बातें कुछ बनी गई। जाने क्या तूने कही। जुल्फ शाने पे मुड़ी, एक खुशबू सी उड़ी। जुल्फ शाने पे मुड़ी, एक खुशबू सी उड़ी। खुल गए राज कई, बात कुछ बनी गई। जाने क्या मैं तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बनी गई। जाने क्या
जाने क्या मैंने सुनी, बातें कुछ बन ही गई, ये जाने क्या तूने कही। बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ पधारे, आपका हार्दिक अभिनंदन है। बीच अपने जो पर्दा है उठा देता हूँ, बीच अपने जो पर्दा है उठा देता हूँ, ज्ञान को भक्ति के हाथों से सजा देता हूँ। अब जो आती है याद मुझे तेरी, तो अपनी तस्वीर ही सीने से लगा लेता हूँ। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा रस परिवर्तन करते हैं। साहब, मैंने आपसे कहा था कि ओल्ड इज गोल्ड। हमारी झोली में नायाब हीरे हैं और हम हीरों को एक एक कर आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो साथियों, थोड़ा सा रस परिवर्तन करते हैं, रंग बदलते हैं, ये शाम कुछ और रंगीन करते हैं। हमारे बीच एक कलाकार हैं, भाई जेड रजा। मैं आवाज दे रहा हूं भाई जेड रजा को। तो हमारे बीच एक कलाकार है भाई जेड रजा, उनकी मिमिक्री से माहौल को मस्त करते हैं। मैं पेश कर रहा हूं भाई जेड रजा को। थोड़ा हंसिए, गुदगुदाइए। to perform the mimicry, but before that मैं आपके सामने गज़ल के कुछ अशार पेश करना चाहता हूँ, अगर आप लोग इजाज़त दें। पैकर, जो उर्दू में जो पैकर का लफ्ज़ है, उसका मतलब होता है अस्तित्व, उसका पूरा रूप। तो गज़ल के चंद अशार ऐसे हैं कि यूं ख्यालों में तेरा चांद सा पैकर चमके, यूं ख्यालों में तेरा चांद सा पैकर चमके, चांदनी रात में जैसे कि समंदर चमके। और इस्म का मतलब होता है नाम। ये तेरा इस्म मुबारक है कि इसमें आज़म लिख दिया जाए तो कागज़ का मुक़द्दर चमके। और मेरी नज़रों ने एक ऐसा भी हंसी देखा है, जिस्म चादर में छुपा ले तो वो चादर चमके। और आखिरी में शायर अपने मतलब पर आ जाता है। फिर वो कहता है कि अब चरागों से अंधेरा नहीं जाता घर का, तुम भी कभी आओ किसी रात के मेरा घर चमके। चलिए सीरियसनेस से निकलकर थोड़ा गुदगुदाते हैं। तो मिमिक्री में मैं कुछ ऐसे गाने प्रस्तुत करूंगा जो एक गायक ने गाया है, उसी गाने को अगर दूसरा कोई गायक गाता है तो वो कैसे गाएगा। एक गाना है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, वो गाना है एक बेचारा प्यार का मारा, राहों में तेरी देख पड़ा है जाने जाना, जुल्फों का साया। ये गाना मोहम्मद रफ़ी ने अपने हाथ से गाए हैं। अब इसी गाने को हेमंत कुमार साहब जो है वो कैसे पेश करेंगे। एक बेचारा प्यार का मारा, राहों में तेरी देख पड़ा है, दिल का दर्द बचा के ओहो एक बेचारा। अब एक गीत है जो लता मंगेशकर ने गाया था। वो गीत यूं है, मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरी
इस गाने को किशोर कुमार साहब कैसे गाएंगे? ठीक। मंडोले मेरा ओए होए ओए होए तंडोले मेरा, अरे दिल का गया करार, अब कौन बजाए ये बांसुरिया, मंडोले तंडोले मन। एक गाना है जो लता मंगेशकर जी ने गाया था, अब दिल तोड़ के मत जाना, रोटी छोड़ के मत जाना, कसम है तुम्हें मेरे असुअन की, घर आया मेरा परदेसी। अब इस गाने को शारदा जी जो थी किसी ज़माने में, शारदा शायद ना, वो कैसे गाएंगी? अब दिल तोड़ के मत जाना, रोटी छोड़ के मत जाना, कसम है तुम्हें मेरे असुअन की, घर आया मेरा परदेसी। एक सीरियस गाना है जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था। वो गाना है तेरी गलियों में रखेंगे कदम, आज के बाद तेरे मिलने को ना आएंगे सनम, आज के बाद ये मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था, तुझको अब मिल ही गया जो तेरा अपना था, गले गम को लगाएंगे सनम, आज के बाद। अब ये जो गाना है, ये जो बच्चे लड़का पैदा होता है तो हमारे यहाँ लोग जो गे लोग जो हैं वो आते हैं यहाँ पे पैसा मांगने के लिए, तो वो इस गाने का कैसा सत्यानाश करते ये देखिए आप। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, ओ हाय आज के बाद, तेरे मिलने को न आएंगे सनम आज के बाद, ओ हाय आज के बाद, अरे ये मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था, ओ हाय सपना था, गले हम गम को लगाएंगे सनम आज के बाद, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने कहा था ना, ओल्ड इज रियल गोल्ड। और साहब बेस्ट। अब मैं आवाज दे रहा हूं भाई सुरेंद्र शर्मा को। भाई सुरेंद्र शर्मा तैयार रहें। चांद के आने से रात तो नहीं रुकती, चांद के आने से रात तो नहीं रुकती, होनी है जो बात वो बात तो नहीं रुकती, मेरे मन मंदिर में हो मेरे मन भावन, तुम चाहो रुक जाओ तुम्हारी याद तो नहीं रुकती, तुम चाहे रुक जाओ तुम्हारी याद तो नहीं रुकती। पेश है भाई सुरेंद्र शर्मा। और इसके बाद आशा मैडम, आशा भाटिया जी और आशा चौहान जी तैयार रहेंगी। मैं एक तराना आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। दीम ताना नादिर देना देरे ना, दीम ताना नादिर देना देरे ना, दीम दीम ताना नादिर देना देरे ना, ओदिर तानी दिर तानी दीम तारा देरे ना, ओदिर तानी दिर तानी दीम तारा देरे ना, तदीम देरे ना, दीम ताना नादिर देना देरे ना, दीम ताना नादिर देना देरे ना,
ओदिरतानी दिरदिरतानी दीम तारा देरे ना ओदिरतानी दिरदिरतानी दीम तारा देरे ना तदीम देरे ना धूम तागड़ धूम देता धूम तागड़ धूम देता दीम ताना नादिर देना देरे ना। इसके बाद में कन्नड़ गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तेरा येरी अंबर दागे नेसर नबताले तेरा येरी अंबर दागे नेसर नबताले मड़गी न तू क्या वे हक्की हाड़िया वे मड़गी न तू क्या वे हक्की हाड़िया वे जिया वे ना नोड़ी नलियो न तम्मा हाड़ी गुणियो न तम्मा तेरा येरी अंबर दागे नेसर नबताले तेरा येरी अंबर दागे नेसर नबताले मड़गी न तू क्या वे हक्की हाड़िया वे मड़गी न तू क्या वे चिलबिली हक्की हाड़िया वे ना नोड़ी नलियो न तम्मा हाड़ी गुणियो न तम्मा चिलवा आगे ना नोड़ी नलियो न तम्मा 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 लोगे तम्मा। मनोरंजन के लिए एक शानदार युगल नृत्य दो आशाएं एक साथ पेश कर रही हैं। तो आशाओं संग उम्मीद लिए चलते हैं आशाओं संग उम्मीद लिए चलते हैं संस्कारों की रीत लिए चलते हैं कामनाएं उमंगे इरादे लिए हुए महफिल में बाहर लाने की आस लिए चलते हैं। ये एक राजस्थानी गीत है जो ABC द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है आशा भाटिया और आशा चौहान द्वारा। और इस गीत का और उसमें उस पर इत्र डाल दिया है नृत्य बाईसा यानी ननद की विदाई के अवसर का है। तो लीजिए पेश है ये प्यारा सा मनभावन नृत्य। बाईसारा वीरा जयपुर जाजो जी बाईसारा वीरा जयपुर जाजो जी हाथा तो लाई जो तारा रे चुनड़ी हाथा तो लाई जो तारा रे चुनड़ी तारा रे चुनड़ी लड़ली लूमा झूमा रे लड़ली लूमा झूमा रे मारो गोर बंद नखरानो आली जा मारो गोर बंद नखरानो लड़ली लूमा झूमा रे लड़ली लूमा झूमा रे मारो गोर बंद नखरानो आली जा मारो गोर बंद नखरानो। एक डर है हमारी सास ननद रो एक डर है हमारी सास ननद रो महला में झाला देवे राज छोड़ो मोरी भैया अरे हिवड़े रोहार टूटो राज छोड़ो मोरी भैया अरे हिवड़े रोहार टूटो राज छोड़ो मोरी भैया ए जी हंसो हमारी रुड़क छुड़क पायल बाजे सा ए जी हंसो हमारी रुड़क छुड़क पायल बाजे सा नैना रानो भी की कर आ
गोरी गज बड़ बड़ी ठणी मुचरो मान ले खमा घणी गोरी गोरी हाँ गोरी 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 गज बड़ बड़ी ठणी मुचरो मान ले खमा घणी गोरी गोरी हाँ गोरी गोरी जीप थारो जादू हो जाए जीप थारो जादू हो जाए बिक तो फिर राम धनी गोरी गोरी हाँ गोरी गोरी हरी चिड़कली उड़ चाली मारो हो गयो आंगन खाली हरी चिड़कली उड़ चाली मारो हो गयो आंगन खाली माई भी बिल खड़ लागड़ी मारी बाई सासर चाली माई भी बिल खड़ लागड़ी मारी बाई सासर चाली मारी बाई सासर चाली मारी बाई सासर चाली साथियों, हमारे साथ साथ हमारे आरसी परिवार के लोग भी पीछे नहीं हैं। उनकी सहभागिता हमारे साथ अवश्य होती है और उनके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। अभी इंस्ट्रूमेंट कीबोर्ड पर श्रीमती रूपम मिश्रा भाभी जी यहाँ एक धुन छेड़ेंगी। हमारे वाइस प्रेसिडेंट भाई मिश्रा जी के साथ ही भाभी जी भी बहुत सक्रिय हैं। तो इस सुहानी शाम को रंगों में बांध लें, इस सुहानी शाम को रंगों में बांध लें, आओ कि जिंदगी को उमंगों में बांध लें। पिंजरे में बंद हो या खुलेपन में कैद हो, आशा के पंख मन के विहंगों में बांध लें। लीजिए पेश है ये प्यारी सी बहुत
है जिसे आप शायद बरसों भूल नहीं पाएंगे। और ऐसा एक क्षण है जो आपके मन में और मस्तिष्क में हमेशा बसा रहेगा। हर नए क्षण की चाह रहा करती है, हर बीते पल की याद रहा करती है। भुलाना भी चाहोगे तो भुला ना सकोगे, भुलाना भी चाहोगे तो भुला ना सकोगे। हर घड़ी के दिल में एक याद रहा करती है, हर घड़ी के दिल में एक याद रहा करती है। पेश कर रही है शानदार नृत्य हमारी कल्चरल सेक्रेटरी डॉक्टर चारुशीला जोशी। मोहे रंग दे लाल, बहुत नाजुक प्यारा नृत्य है। जो साथ